कृपा और ए की मदद से आज के पहले घातक घोट से दूर हूँ। आप सबका स्वागत है रिवाइवर ग्रुप की ऑनलाइन ए मीटिंग में। हम हर शुक्रवार को मिलते हैं रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक और हम 12 स्टेप्स एंड 12th एडिशन की किताब से हर एक स्टेप पे चर्चा कर रहे हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टेप 7 में, जो हमने पेज 75 में रोका था, लास्ट पैराग्राफ। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और एक ही पेज है तो पुशन मैं पूरा पेज कंप्लीट कर देता हूँ ताकि हम रैप अप कर सकें स्टेप 7। यस प्लीज। ओके, हिंदी का कौन सा पेज है? हिंदी में भी पेज 75 होना चाहिए अगर आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन हम भूषण जी आपको हिंदी में ही शेयरिंग करेंगे और समझाएंगे। ओके, पेज 75, लास्ट पैराग्राफ। We saw we need not always be bludgeoned and beaten into humility. It could come quite as much from our voluntary reaching for it as it could from unremitting suffering. A great turning point in our lives came when we sought for humility as something we really wanted rather than as something we must have. It marked the time when we could commence to see the full implication of step 7. Humbly asked him to remove our shortcomings. Next page, please. As we approach the actual taking of step 7, it might be well if we AAs inquire once more just what our deeper objectives are. Each of us would like to live at peace with himself and with his fellows. We would like to be assured that the grace of God can do for us what we cannot do for ourselves. We have seen that character defects based upon short-sighted or unworthy desires are the obstacles that block our path towards these objectives. We now clearly see that we have been making unreasonable demands upon ourselves, upon others, and upon God. The chief activator of our defects has been self-centered fear, primarily fear that we would lose something we already possessed or would fail to get something we demanded. Living upon a basis of unsatisfied demands, we were in a state of continual disturbance and frustration. Therefore, no peace was to be had unless we could find a means of reducing these demands. The difference between a demand and a simple request is plain to anyone. The seventh step is where we make the change in our attitude which permits us, with humility as our guide, to move out from ourselves towards others and toward God. The whole emphasis of step 7 is on humility. It is really saying to us that we now ought to be willing to try humility in seeking the removal of our other shortcomings, just as we did when we admitted that we were powerless over alcohol and came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. If that degree of humility could enable us to find the grace by which such a deadly obsession could be banished, then there must be hope of the same result respecting any other problem we could possibly have. Over to you, Pushan. थैंक यू चंदू। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं शराबी हूँ। भगवान की कृपा और आप सब लोगों की मदद आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ दोस्तों, और एक आनंदमय और एक सुखी जीवन जी रहा हूँ। कभी सोचा भी नहीं था सपने में शराब पीने के टाइम पे कि कभी इतना शांतता और इतना आनंद भरा जीवन मैं जी सकूंगा, लेकिन आप लोगों में रहकर और ये कार्यक्रम को समझने का प्रयास करते करते ये सब संभव लगने लगा है। तो जो भी नए सदस्य जुड़े हुए हैं उनके लिए एक क्विक रिकैप करते हैं। क्या हमारा पहला कदम कहता है
कि हम शराब के साथ में बहुत सारी लड़ाई की और हम चारों मुंडी चीत हो गए, शराब के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए, और जब ये सरेंडर किया तभी हम लोग शराब से बच गए। हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये महामाया है, इसके सामने जितना मैं झगड़ा करते रहूंगा उतना मैं ही बर्बाद होते रहूंगा। शराब अपनी जगह सही है लेकिन मेरे लिए नहीं है, इस बात की स्वीकृति तक मैं पहुंच गया। उसी के साथ में मैंने ये देखा कि शराब की चाहत ही नहीं बल्कि मेरा जो भी जीवन जीने का प्रयास रहा है उस वजह से मेरे सभी रिश्ते तहस नहस हो गए और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। जिंदगी के मतलब मेरे फाइनेंसेस अस्त व्यस्त हो गए, मेरी सेहत अस्त व्यस्त हो गई, मेरे रिश्ते अस्त व्यस्त हो गए, मेरे इमोशनल एक्सपेक्टेशंस तहस नहस हो गई, समाज में मेरी प्रतिष्ठा तहस नहस हो गई। तो हर प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने आप को समाज में बनाने का या दिखाने का प्रयास करता है वो हर दायरे में मैं नाकामयाब होने लगा, और उस वजह से मैंने सरेंडर यानी ह्यूमिलिटी को स्वीकार किया। अभी तक जो मैं लात मारूंगा वहां पानी निकालूंगा, मैं जैसा चाहूंगा वैसे ही लोगों को करवाऊंगा, मेरा ही सब लोगों ने मानना चाहिए सुनना चाहिए, ये मेरा आग्रह मैंने छोड़ दिया और मैंने अपने आप को एक नए रास्ते पे नए तौर तरीकों से जीने के लिए तैयार किया। तो हमारे दूसरे कदम में हमने ये सोच लिया कि भाई जिस प्रकार से मैं जी रहा था वो गलत था, तो इसका मतलब मुझे कोई ना कोई दूसरा सही तरीका ढूंढना होगा। और ये सही तरीका मुझे मिलेगा कहाँ? जब मैं नतमस्तक होऊंगा तभी मेरे को कोई तो भी मार्ग दिखलाने आएगा। इसीलिए मेरे से बढ़कर ऐसी कोई भी एक शक्ति मुझे स्वीकारनी होगी। नए नए थे, ईश्वर के बारे में हमको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, रिलीजन से हम दूर हो चुके थे, अच्छे संबंधों से दूर हो चुके थे, गुरुजनों से दूर हो चुके थे। इसीलिए हमने शुरुआत के दिनों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ही वो उच्च शक्ति माना। फिर तीसरे कदम में हम लोग कहते हैं कि भाई ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस को उच्च शक्ति माना, इसका मतलब क्या? तो अभी मुझे मेरी इच्छा और मेरा जीवन ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बनाए हुए तौर तरीकों से जीना होगा। ये हमारा तीसरा कदम है। मतलब पहले मैं शॉर्टकट लेता था, अभी मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा। पहले मैं झूठ का सहारा लेता था, कमीनापन लेता था, मैं लोगों को मैनिपुलेट करता था, मुझे जैसे चाहिए वैसे लोगों ने करवाने के लिए हरकतें करता था। अभी मैं वैसे नहीं करूंगा। अभी मैं पेशेंस, टॉलरेंस, लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऐसे सारे पॉजिटिव फीलिंग्स को लेकर मैं ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो भी स्लोगन्स है, जो भी अच्छे विचार है, जो भी थॉट फॉर द डे है, इनको अपने दिमाग में प्रभावित रखते हुए मैं अपने जीवन को नए ढंग से जीने का प्रयास करूंगा। अब पहले 3 कदम, दीज आर कॉल्ड द बिगिनर स्टेप्स। तो ये 3 कदम होने के बाद में ऑटोमेटिकली जिंदगी सुधरने लगती है, संवरने लगती है। जो हमने इसका एहसास लिया कि शरीर, शराब बंद हो गई तो शरीर सुदृढ़ हो गया, 2 टाइम का खाना अच्छी तरह से जाने लगा, शरीर में बल आने लगा। जैसे शरीर में बल आने लगा वैसे मैं काम धंधे की खोज में बाहर निकलने लगा, काम धंधा करने लगा, वैसे मेरी फाइनेंशियल रिकवरी हो गई। जैसे मेरे हाथ में पैसा आया और मैं समाज में दोबारा लोगों के बीच में भीतर में घूमने फिरने लगा, वैसे दोबारा मुझे खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। जो मेरे घर वालों के दिलो दिमाग से मैं उतर चुका था, अब मैं बगैर शराब के उनके बीच में एक अच्छा फैमिली मेंबर करके दोबारा मैं जब स्थित होने लगा तो उन्होंने मुझे स्वीकार कर दिया। मेरा मेंटल रिहैबिलिटेशन हो गया, मेरा सोशल रिहैबिलिटेशन हो गया, मेरा फिजिकल रिहैबिलिटेशन हो गया, मेरा फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन हो गया। और ये सभी होते 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 मुझे ऐसे लगने लगा कि इसके आगे की जिंदगी बड़ी खुशहाल है, अभी अच्छे से ही चलेगी। लेकिन यहाँ पर बिल डब्ल्यू हमें चेतावनी देते हैं कि भाई
ये तो हनीमून पीरियड है, ये तो पिंक क्लाउड स्टेज है कि नया नया तू शराब से दूर हुआ है तो सब लोगों ने तेरा स्वागत किया है, सब लोगों ने तुझे एनकरेज किया है। लेकिन अगर तू पहले शराबी बना क्यों, बना कैसे, बना कब, और तेरे हाथों से क्या क्या चीज हुए है, इसका नैतिक अगर तू डेबिट क्रेडिट यानी कि इन्वेंट्री नहीं लेता है, तब तक यही चीजें दोबारा तेरी जिंदगी में आ सकती है। तो नैतिकता क्या होती है? तो जैसे हम पैदा हुए तो हम एक जानवर थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे समाज ने अच्छे बुरे की समझ हमको दिखाई कि भाई झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, दूसरे की औरत पे नजर नहीं डालना, दूसरे की कोई भी चीज को न चाहना, यानी कि एक खुद के प्रति सम्मान और औरों के प्रति सम्मान, धीरज, इस प्रकार का जो हमारे ऊपर संस्कार हुए थे, इसे हम लोग नैतिकता कहते हैं कि समाज में अगर रहना है तो कुछ नैतिक मूल्यांकनों के सहारे रहना होता है तो सभी को मंजूर होता है। अब ये नैतिकता को उल्लंघन करेंगे तो समाज आपको बाहर फेंकेगा। जैसे पागलों को मेंटल हॉस्पिटल में डाला जाता है या गुनहगारों को जेल में डाला जाता है कि ये समाज में रहने लायक नहीं है, उसी प्रकार से अगर आप समाज में रहने लायक नहीं हो तो आपको बाहर फेंका जाता है। तो अभी चौथे कदम में मुझे ये देखना है कि मैं अपने नैतिक मूल्यांकन से कैसे कैसे ढल गया। इसका जब भी मैं डिटेल बिल्डब्ल्यू यहाँ पर कहते हैं कि भगवान ने हमें कुछ उपजत प्रवृत्तियां दी हुई थी, लेकिन मेरी कहाँ रुकने का ये समझ में नहीं आने की वजह से मेरे मन में जो एक माइल एडजस्टमेंट है या एक ग्रीड है कि हर चीज मुझे थोड़े से मजा ही नहीं आता है। मीठा खाऊं तो थोड़ा खा के रुक नहीं सकता हूँ, पिक्चर देखूं तो मैं बार बार पिक्चर ही देखते रहता हूँ, टीवी देखने को बैठा तो घंटे तक टीवी देखता हूँ, किताब पढ़ने बैठा तो किताब खत्म किए बगैर मेरा दिल नहीं लगता, लड़कियों के पीछे लगता हूं तो मुझे लगता है हर लड़की मुझे प्राप्त होनी चाहिए, पैसा 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 पैसा, तो मैं पूरी तरह से पैसे के पीछे पागल हो सकता हूँ, काम 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 तो मैं वर्कोहॉलिक हो सकता हूँ। इसका मतलब मेरे को एक बीमारी लगी है, अ बीमारी ऑफ एक्सेसेस। हर चीज में मुझे न बुझने वाली प्यास है। मैं जो अभी तक सोच रहा था कि मेरी न बुझने वाली प्यास सिर्फ शराब के प्रति है, नहीं, मेरी न बुझने वाली प्यास हर हवस के पीछे है, हर चीज के पीछे मेरी न बुझने वाली प्यास है। तो इनके वजह से मेरी जो इंस्टिंक्ट्स है, मेरी जो ये मूलभूत प्रवृत्तियां है, ये गड़बड़ी होने की वजह से मेरी स्वभाव, मेरा जो पर्सनालिटी है, वो एक पेंडुलम की तरह दो एक्सट्रीम में हो गया। एक एक्सट्रीम यानी या तो मैंने लोगों को डोमिनेट किया, डिक्टेट किया, बुलडोज किया, या तो मैं एकदम ही पुअर मैं डिप्रेशन में गया, मैं दुनिया से छुप के बैठा, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मेरे से कोई बात मत करो, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है, मेरे जैसा हालत किसी का नहीं है। तो मैं या तो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया या तो मैंने लोगों को डिपेंडेंट बनाया। बोथ वेज जो रिलेशनशिप्स मैंने बनाई, ये फॉल्टी रिलेशनशिप्स बनाई, और उसके वजह से कोई भी बनाई हुई रिलेशनशिप में से मुझे आनंद नहीं मिल रहा था। मेरे को जीने का मजा जो है, वो शांतता जो है, वो शांतता नहीं मिल रही थी, और इसी के लिए मैं मेरी मजा जो है वो छोटी छोटी चीजों में ढूंढ रहा था कि मैं पराई औरत के साथ सो लूं तो मुझे मजा आएगा, और वो मैं जो सिंथेटिक कृत्रिम थोड़े समय के लिए मजा देता है लेकिन ढेर सारे समय के लिए टेंशन, डर, फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, ऐसी सब चीजों में मैं उलझने लगा। मुझे पैसा चाहिए तो मेहनत करके पैसा कमाना इतना पेशेंस नहीं है, तो फिर मैं चोरियां करूंगा, मैं झूठे वाउचर डालूंगा, मैं दोस्तों के पैसे ढांपूंगा, मैं नैतिकता का विचार न करते हुए दूसरे किसी का जो हिस्से का है वो भी मैं हड़प लूंगा। इस प्रकार के मेरे पास से एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड यानी खुद ही के ऊपर सेंट्रिक ऐसे बिहेवियर होने लगे, जिसके वजह से समाज में मेरे करीब से करीब या दूर से दूर वाले रिश्तों ने मुझे दोस्त, बाप, बेटा या भाई बनने लायक नहीं समझा। अब ये जो विकृति है, भले मेरी आज शराब रुक गई है,
लेकिन मैंने ये जो दाग दिए हुए हैं, ये जो विकृतियां मेरे अंदर निर्माण हुई है, वो तो कहीं गई नहीं है। अगर इनका मैं इलाज नहीं करता हूं, इनके ऊपर हीलिंग नहीं करता हूं, तो मुझे दूर तक यानी संभावता जिंदगी भर के लिए शायद मद्य मुक्तता भी नहीं मिलेगी, और मद्य मुक्त रहा भी तो भी मुझे चैतन्य नहीं मिलेगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए मुझे इसमें से बाहर निकलने की पहली स्टेप है, हीलिंग स्टेप जो है, वो एक मार्गदर्शक लेकर उसके साथ में मेरे ये जो डार्क सीक्रेट्स है उसके साथ में बात करने की। उसके बीच का भी एक बहुत सुंदर सा उन्होंने ये बताया कि जब मेरी सद विवेक बुद्धि पूरी तरह से स्वार्थ से लड़बड़ा गई है, तो वो मेरे चाहते हुए भी वो मेरे लिए काम नहीं करती है। लेकिन जब मैं दूसरे किसी व्यक्ति, कोई अगर मेरा स्पॉन्सर हो या हितचिंतक हो या कोई प्रीस्ट हो या किसी भी ऐसा व्यक्ति जो कार्यक्रम या मैं जो करना चाहता हूं वो समझता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ करता हूं, तो उसकी तो सत विवेक बुद्धि बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जब मेरी सत विवेक बुद्धि कंफ्यूज्ड है, वो टाइम पे दूसरे किसी व्यक्ति की सत विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने आप की तरफ देखने लगता हूं। ये मेरा पहला कदम है, जहां पर मैं कर्ता भाव से साक्षी भाव की तरफ निकल पड़ता हूं। कर्ता भाव वो होता है जहां मैं, मेरा काम, मेरा धंधा, मेरा पैसा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे टेंशन, मेरा भाई, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा 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 मैं जो मैं लगा रहता हूं, ये है कर्ता भाव। और साक्षी भाव, जब मैं ही अपनी तरफ एक थर्ड पार्टी की तरह देख सकता हूं, अरे पूषण ये कैसा तूने किया यार, पूषण ये इस प्रकार से बात करते हैं क्या अपने बाप से, पूषण यार तूने जो अपने बीवी के साथ में जो गैर व्यवहार किया ये ठीक नहीं है, भूषण तू जिस प्रकार से तेरे बच्चों के साथ बिहेवियर कर रहा है बिल्कुल गलत है। भूषण तेरा एटीट्यूड और अप्रोच है जो जॉब करने का, नौकरी करने का, बिजनेस करने का बिल्कुल गलत है, तू बहुत स्वार्थी बन चुका है, इसमें से बाहर निकल। ये जो थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है, इसको हम लोग कहते हैं साक्षी भाव। तो जब भी हम लोग स्पॉन्सर से बात करते हैं और स्पॉन्सर की निगाहों से अपने प्रॉब्लम्स की तरफ देखना चालू करते हैं, तो उसका साक्षी भाव अपने अंदर के साक्षी भाव को जागृत करने में मदद करता है, और हम अपनी ही कहानी की तरफ दूसरे किसी के जीवन में ये हुआ होगा इस प्रकार से तटस्थता से देख सकते हैं। अब जब यह साक्षी भाव हमें प्राप्त होता है और जब हम बारकाई से अपने पास की तरफ देखने लगते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि भाई हमारा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है, हमारा प्रॉब्लम हमारा पूरी पर्सनैलिटी है। हम पहले से ही जिस प्रकार के बने हुए हैं, वो बनते बनते हमारे में कई सारे डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, हमारे में बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स है, और ये शॉर्टकमिंग्स को हमको ठीक करना पड़ेगा। बिल यहाँ पर कहता है कि यही एक कदम है जो बच्चों से बुजुर्गों को अलग करता है। बच्चे लोग सिर्फ शराब से दूर होकर खुश हो जाएंगे, लेकिन जो बुजुर्ग है, जो ये कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और जिंदगी भर इसे करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि शराब ये सिर्फ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन, सिर्फ बाहर दिखने वाला एक रूप था। अगर शराब निकल जाएगा तो वहां गैम्बलिंग आ जाएगा, गैम्बलिंग निकल जाएगी तो वहां वुमनाइजिंग आ जाएगा, वुमनाइजिंग निकल जाएंगे तो वहां पर पोर्नोग्राफी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, क्योंकि मेरा मन असंतुलित और असंतुष्ट है। तो मेरे मन को अगर संतुलन में और संतुष्ट करना होगा, अगर मेरे चित्त को शांत करना होगा, तो मुझे मेरे बाकी विकारों के ऊपर काम करना होगा। और यहाँ पर हम लोग आते हैं छठे और सातवें कदम की तरफ। तो छठे कदम में हम वो सब जो चीजें हैं जो मेरे अंदर अभी भी है, कुछ शायद मैं जैसे गुस्सा, जैसे जेलसी, जैसे ये चीजें जो शायद मैं सोचता हूँ कि थोड़े बहुत जरूरी भी है, या उन्हीं से जिंदगी का लुत्फ आता है या मजा आता है। किसी के ऊपर गुस्सा करके कैसा अच्छा लगता है, या किसी के पीठ पीछे गॉसिप करके कितनी मजा आती है। तो आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दिस, ऐसे जो लगते हैं वो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये रहने चाहिए। लेकिन बिल कहता है कि भाई तू अगर वो परमेश्वर के रूप में समान समरूप होना चाहता है, उसी रास्ते पर बढ़ना चाहता है, तो ये शॉर्टकट नहीं चलेंगे। तुझे अगर आगे जाकर तेरा फुल पोटेंशियल, तेरे अंदर का जो पूरी तरह से जागरूकता का अनुभव तुझे लेना है, तो ये ऐसे कच्चे धागे में नहीं चलेगा, तेरे को पक्का कदम उठाना पड़ेगा।
और तभी जाकर छठे कदम में मैं आइडेंटिफाई करने लगता हूँ कि ऐसी कई सारी चीजें मेरे अंदर है। वहां पर बिल डब्ल्यू सिंपली बताते कि जैसे हमको पहले से बताया गया है कि हमारे जो षड रिपु है, मद मत्सर क्रोध दंभ, ये सभी जो हमारे जो रिपु हमारे शास्त्रों के अनुसार जो बनाए गए, ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में भी बताए जाते हैं। तो इन्हीं के जरिए मैंने जो कुछ भी भ्रष्टाचार मेरे साथ हुआ है, मैंने किया हुआ है, ये इन्हीं के बलबूते हुआ है। तो इनको अगर संतुलन में लाना होगा तो इनकी यादी बनानी होगी। और फिर सातवें कदम में आते हैं कि भाई सादी शराब से दूर होना था, तभी भी सॉल्यूशन क्या था? ह्यूमिलिटी। जब तक सरेंडर नहीं तब तक शराब से छुटका नहीं। उसी तरीके से शराब तो सिर्फ एक केमिकल था यार, छोटी सी चीज थी। लेकिन ये जो अभी मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, ये मेरे पर्सनैलिटी के शॉर्ट कमिंग्स है, जिनके साथ में मैं 30 साल 40 साल 50 साल जिया हुआ हूं, इनको निकालना अगर होगा तो ये तो बड़ा आसान काम है नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बिल कहता है डरने की बात नहीं है। हम में से शायद शायद ही कोई संत महात्मा बन पाएगा, लेकिन हम वो संत महात्मा बनने के रास्ते पर चलते रहेंगे। जितना हो सके पिछले वाले बीते हुए कल से आज बेहतर होना चाहिए, और आज से आने वाला कल बेहतर होना चाहिए। रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति अगर होती रही तो कुछ ही समय में हमको हमारे बीच में, शायद हमको खुद को नहीं नजर आएगी, लेकिन पूरी दुनिया को हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो दिखाई देगा। तो वो कहता है कि जो ट्रिक है वो हमेशा सरेंडर की है। अगर मेरे को गुस्सा बहुत है तो सरेंडर कर और ह्यूमिलिटी के साथ में पेश आ। अगर मेरे अंदर संशय बहुत है तो सरेंडर कर। मैं जानता हूं कि ये मेरा पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है। जैसे मैं बोलता था आई एम पावरलेस ओवर माई अल्कोहल, वैसे ही अभी मैं बोलूंगा आई एम पावरलेस ओवर माई, मेरा जो शकी बिहेवियर है उसके ऊपर मैं पावरलेस हूँ, मेरे गुस्से के ऊपर पावरलेस हूँ, मेरे फियर के ऊपर पावरलेस हूँ, मेरे सेक्स इंस्टिंक्ट के ऊपर मैं पावरलेस हूँ, मेरे पैसे की जो लालच है मेरे अंदर वो न बुझने वाली, उसके ऊपर मैं पावरलेस हूँ। तो एक 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 करके आप इन सभी के ऊपर काम कर सकते हो। ये जो है इसके लिए भी वो कहता है कि ह्यूमिलिटी, नम्रता और ऑब्जेक्टिव, यानी जो हम लोग ने साक्षी भाव और नम्रता, ये दोनों के सहारे मैं अपने अंदर के ये जो जो बड़े गाढ़े तौर पर जो डीप रूटेड जो मेरे अंदर के जो ये डिफेक्ट्स है, इनको मैं एड्रेस कर सकूंगा। वो कहता है कि अगर आप भगवान में विश्वास नहीं भी करने वाले हो, या भगवान को बहुत ज्यादा मानने वाले हो, रिलीजन को बहुत ज्यादा सब कुछ करने वाले हो, आप दोनों तरीके से आप डिसिल्यूजन हो जाओगे। क्योंकि आपको सही मायने में समझ में आ जाएगा कि भगवान ये मेरे को आवश्यक चीजें पूरी करने वाली कोई यंत्रणा है नहीं, या भगवान कोई ऐसी भी चीज नहीं है जो मैं मेरा मेरा करते रहूं, और जहां थोड़ा सा कम पड़ेगा वहां पर मैं मदद के लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट करके भगवान को नवस बोल दूं या कुछ उसको मांग लूं और उसको वो मुझे पूरी करेगा। मेरी ख्वाहिशें पूरे करने का ये साधन है नहीं। तो वो तो क्या है? तो मेरा मेरा जो नया जो अप्रोच है कि ये जिंदगी चलते रहेगी। मेरे जैसे करोड़ों लोग आए, पैदा हुए, मर गए, चले गए, ये जीवन चलते रहा। हम में से कोई भी चिरंतन नहीं है। हम बड़ी सूक्ष्म ऐसी एक चीज है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन ये जो विश्व में चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसका एक बहुत मामूली सा छोटा सा हिस्सा हम है। और अगर हम साक्षी भाव से ये देखते हैं कि मेरे होने या नहीं होने से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और जो भी हो रहा है उसकी स्वीकृति में ही आनंद है। आज क्या है? बारिश है, वाह 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 वाह, आज बारिश का आनंद लेते। आज क्या है? गर्मी, वाह, आज गर्मी का आनंद लेते। अरे पंछी उड़ रहे, अरे पंछियों की चहपला चहचहाट का आनंद लेते हैं। आज क्या है? आज बहुत ठंड पड़ी है, चलो यार ठंडी के गर्मी के कपड़े निकालते हैं और उसका आनंद लेते हैं। यानी हर वो चीज जो जीवन में हो रही है उसकी स्वीकृति, पूरी तरह से उसका एक्सेप्टेंस करके अपने आप को वो बहते हुए पानी की तरह मोड़ लेना, और वहां पर हर जगह पर
आपको ईश्वर की कृपा दिखाई देगी। वाह वाह वाह, क्या सुंदर पेड़ बना हुआ है, ये ईश्वर की कृपा है। वाह वाह वाह, क्या सुंदर बटरफ्लाई है, कितना सुंदर पक्षी है, कितने सुंदर जानवर है, कितने सुंदर लोग हैं, कितने लोगों के बीच के अंदर अंदर ख्याल है, कितने सारे लोग साइंटिस्ट है जो रिसर्च कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल आदमी है जो मंदिर बना रहे। वाह 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 वाह, क्या संसार है। हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से और हर जगह पे खुला मन रख के नम्रता के साथ में मैं अगर जुड़ जाऊं और मेरे से जो कुछ भी हो सके उतना कर पाऊं, मेरे ऊपर का ध्यान निकाल कर औरों के ऊपर और ईश्वर के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित करूं, तो ही मुझे दिखाई देगा ये जो आजू बाजू में मेरे सामान्य जो जनता के बीच में जो साक्षात्कार हो रहे हैं, रोजाना हर पल हर रोज जो साक्षात्कार हो रहे हैं, उनको मैं विटनेस कर सकूंगा। जब तक मैं अपनी ही अंधी दौड़ में लगा पड़ा हुआ था तब तक मुझे ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब मैं अपनी रेस में से निकल जाऊंगा और अपने आप को सरेंडर करूंगा और बड़ी नम्रता के साथ में मेरे साथ में जो हो रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मैं शराब से दूर हूं। आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मेरी बीवी मेरे साथ में है। अब मेरे को इतना आनंद है कि आज मेरा बच्चा अपने आप सेटल हो गया, कमा रहा है अच्छे से। मैं इतना खुश हूं आज कि मैंने छोटा मोटा एक व्यवसाय शुरू किया था, आज अच्छा स्वरूप उसको आया हुआ है, मेरी नहीं बल्कि और भी कुछ जिंदगियों का ये सहारा कर रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल कि आज समाज में दोबारा मुझे एक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, जाने जैसे चंद घर मेरे लिए है। हर वो छोटी छोटी चीज जो मुझे मिल रही है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड जब भी मेरे मन में आने लगता है और ऑब्जेक्टिवली जब भी मैं अपने अंदर आने वाला थोड़ा सा क्रोध हो रहा है, पूषण शांत हो जा। कोई भी चीज क्रोध जैसी नहीं है। डर लग रहा है, पूषण शांत हो जा। तू विचारों में जितना डर बढ़ा रहा है उतना एक्चुअली स्थिति शायद गंभीर नहीं होगी। तो हर वो चीज को अपनी तरफ, अपने आप की तरफ एक तटस्थता से देखने की जो क्षमता है और नम्रता से हर समस्या का सामना करने की जो खूबी है, ये मुझे 7वें कदम में ईश्वर की कृपा से ये मुझे प्राप्त होती है। तो इस टप्पे पे हम लोग यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा जैसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ माय स्पिरिचुअल रिहैबिलिटेशन जो है, ये मेरे 7वें कदम में, यानी मेरा मेरे ईश्वर के साथ, मेरा इस दुनिया के साथ, मेरा ये लोगों के साथ में, मेरा खुद के साथ में हर रिश्ता जो है ये अब नए सिरे से मैं देखने लगता हूं और उसके प्रति मुझे प्यार और बड़ा आनंद, हर छोटी छोटी चीज में से आनंद प्राप्त होने लगता है। यहाँ पर हम लोग हमारा 7वां कदम खत्म करते हैं और अभी बढ़ते हैं आगे 8वें और 9वें कदम की तरफ, जो है हमारा सोशल रिहैबिलिटेशन। तो ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। तो मैं रीडिंग शुरू करता हूं। स्टेप 8, made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. Steps 8 and 9 are concerned with personal relations. First, we take a word and try to discover where we have been at fault. Next, we make a vigorous attempt to repair the damage we have done. And third, having thus cleaned away the debris of the past, we consider how, with a newfound knowledge of ourselves, we may develop the best possible relations with every human being we know. This is a very large order. एक ही मिनट रुक जाए इधर चंदू। ये पहला पैराग्राफ बहुत पावरफुल है, इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। Sure. 8वें और 9वें कदम में क्या होता है इसके बारे में बात करते हुए बिलडब्ल्यू कहते हैं, सबसे पहले हम पीछे मुड़कर देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी गलतियां कहां कहां पर हुई। उसके बाद में वो जो डैमेजेस हमने किए हुए हैं उनकी अमेंड्स करने का, उनको ठीक करने का, वो डैमेज को ठीक करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और तीसरा, वो जो पीछे वाला जो कचरा है, पीछे वाले बिगड़े हुए रिश्तों का जो झंझट है, वो जब ही क्लियर करेंगे उसके बाद में हम अभी सोचने लगते हैं कि ये जो खुद ही के प्रति हमें नई जानकारी मिली है,
अब मैं नया आदमी बन चुका हूँ। मेरा दुनिया की तरफ, खुद की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। ईश्वर की तरफ मेरा रिश्ता अलग ढंग से हो चुका है। ईश्वर की तरफ मेरा देखने का नजरिया बदल चुका है। इसका मतलब नाउ आई एम अ न्यू मैन। अभी जो पुराने विचारों से ग्रस्त था, सेल्फ सेंटर्ड थॉट से मैं ग्रस्त था, वहां से बाहर निकल के अभी मुझे औरों की अहमियत समझ में आई हुई है। सो विद दिस न्यू फाउंड नॉलेज ऑफ अवर सेल्फ, हमारे इस नए जागृति के साथ में, वी मे डेवलप द बेस्ट पॉसिबल रिलेशन विद एवरी ह्यूमन बीइंग वी नो। अभी हमारे सामने जो गोल है कि आज हमें पहचानने वाले, या मैं जिनको जिनको जानता हूं, ऐसे हर व्यक्ति के साथ में बेहतर से बेहतर नया रिश्ता बनाने के लिए अब मैं तैयार होता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ जाके आमेंस कर दिया, सॉरी यार मैंने तेरे से 500 लिए थे, ये ले 500, सॉरी यार मेरी वजह से तकलीफ हुआ। ये नहीं है। इट्स नॉट अबाउट गोइंग एंड सेइंग सॉरी यार, मैंने वो आपका पब्लिकली मैंने इंसल्ट किया था, वो टाइम पे मैं शराबी था, अब मैं शराब बंद किया हूँ, मेरे कार्यक्रम का ये भाग है कि मैं जाके माफी मांगू, तो मैं माफी मांगने को आया। नहीं, द एम्फोसिस is on developing the best possible relationship with every human that we know। यानी सिर्फ पुराने चीजों का, गलतियों का माफी नहीं, बल्कि इनके साथ में संभवतः सबसे खूबसूरत रिश्ता कैसे बना सकते हैं, उसका ये ध्येय है। ये 8वीं 9वीं स्टेप्स में ये हमारे 3 प्राथमिक उद्देश्य रहने वाले। ओवर टू यू सर, सॉरी। थैंक यू पुष्कर। सर, भूषण सर, हाँ जी। हाँ। मैंने आपसे 2 या 3 बार मैंने बात की है, तो सर मुझसे नहीं रुक रहा है सब कुछ ना, तो आई एम गोइंग टू साइड टुडे। अच्छा नरेंद्र जी, हम लोग थोड़े समय के मैं बाद में बात करेंगे, खत्म करते फिर बात करें। खत्म आई करें। डोंट हैव मैं टाइम, आई डोंट हैव टाइम। भूषण सर, क्वेश्चन, कैन वी टेक इट मैं अप? आपकी बात ही ओके, सुनता हूँ, बोलो ना, बोलो नरेंद्र भाई। मुझे नहीं चल रहा भूषण सर। आपने कहा आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, और मुझे Has found that he can make little headway in this new adventure of living until he first backtracks and really makes an accurate and unsparing survey of the human wreckage he has left in his wake. To a degree, he has already done this when taking moral inventory, but now the time has come when he ought to redouble his efforts to see how many people he has hurt and in what ways. This reopening of emotional wounds, some old, some perhaps forgotten, and some still painfully festering, will at first look like a purposeless and pointless piece of surgery. But if a willing start is made, then the great advantages of doing this will so quickly reveal themselves that the pain will be lessened as one obstacle after another melts away. Bhushan, continue or और एक you want to say? Okay. These obstacles, however, are very real. The first, and the one of the most difficult, has to do with forgiveness. The moment we ponder a twisted or broken relationship with another person, our emotions go on the defensive. To escape looking at the wrongs we have done another, we resentfully focus on the wrongs he has done us. This is especially true he has, in fact, behaved badly at all. Triumphantly, we seize upon this misbehavior as the perfect excuse for minimizing or forgetting our own. Right here, we need to fetch ourselves up sharply. It doesn't make much sense when a real tosspot calls a kettle black. Let's remember that alcoholics are not the only ones bedeviled by sick emotions. Moreover, it is usually a fact that our behavior when drinking has aggravated the defects of others. We repeatedly strain the patience
of our best friends to a snapping point and have brought out the very worst in those who didn't think much of us to begin with. In many instances, we are really dealing with fellow sufferers, people whose woes we have increased. If we are now about to ask forgiveness for ourselves, why shouldn't we start out by forgiving them one and all? Over to you, Bhushan. तो BW कहते हैं कि ये जो रिश्तों को हमने तहस नहस किया हुआ है, इनके साथ रहना या उनको रिपेयर करना ये कोई आसान काम है नहीं। इनफैक्ट ये सबसे डिफिकल्ट काम है। धीरे 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 जैसे हम लोग करते जाएंगे और लोगों की माफिया मिलते जाएंगी, वैसे हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारा करने का तरीका भी बेहतर बेहतर होते जाएगा। लेकिन 100% हम लोग सक्सेसफुली कर पाए, इसका चांस नहीं है। हमारी अमेंड्स ये अधूरी ही रहती जाएगी, क्योंकि जो हमने जख्म पहुंचाई है वो जख्म तो हील हो जाएगी, लेकिन उसका जो स्कार है वो स्कार कहीं ना कहीं अभी भी बचा हुआ रहेगा। सो बिल कहते हैं, लर्निंग हाउ टू लिव इन द ग्रेटेस्ट पीस, पार्टनरशिप एंड ब्रदरहुड विथ ऑल मेन एंड वुमेन ऑफ वॉट एवर डिस्क्रिप्शन इज ए मूविंग एंड फैसिनेटिंग एडवेंचर। ये जो हमने पहले टप्पे में जो डिफाइन किया था कि हर बिगड़े हुए रिश्तों को सिर्फ मैं माफी मांग के भर नहीं निकालूंगा, लेकिन उसके साथ में जितना हो सके उतना बेहतर से बेहतर रिश्ता बनाने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। ये एडवेंचर BW कहता है, ये फैसिनेटिंग एडवेंचर है। ये किस तरीके का? तो पीस एंड पार्टनरशिप, ये ग्रेटेस्ट लिविंग इन ग्रेटेस्ट पीस एंड इन पार्टनरशिप विथ ऑल ब्रदरहुड। जो भी मेरा समाज है, हर एक प्रकार का व्यक्ति है, इनके सबके साथ में एक शांतता पूर्वक और एक पार्टनरशिप के जरिए, वी आर ऑल पार्टनर्स ऑफ दिस वर्ल्ड टुगेदर। तो इस तरीके से जीना होगा। तो ये एक बड़ा प्रॉमिसिंग, बड़ा एक्साइटिंग ऐसा ये प्रपोजिशन है। BW कहते हैं कि मॉरल इन्वेंट्री लेते समय हमने थोड़ा बहुत काम ये किया हुआ है कि हम कैसे कैसे गलत रहे हैं। हमारी फियर इन्वेंट्री, हमारी सेक्स इन्वेंट्री, हमारी एंगर रिजेंटमेंट इन्वेंट्री, ये सब चीजों में लोग ही तो थे, लोगों की वजह से तो हुआ था। तो इसका हम लोगों ने काफी हद तक काम ऑलरेडी किया हुआ भी है। तो एक आधी अधूरी तो लिस्ट हमारे पास में तैयार भी है। हम जानते हैं कि किन लोगों ने हमारा बिगाड़ा था, उसमें हमारा रोल क्या था, ये खाली शायद हमने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन ये नाम हमारे अलग अलग इन्वेंट्री में से ऑलरेडी आ ही चुके हैं। बट ये जो जख्म है ये दोबारा ताजा हो जाएंगे जब भी आपके सामने अभी प्रस्ताव रखा जाएगा कि ये सब जो लोग थे इनको जाके अभी हील करना है, उनको भी हील करना है, और इनके हीलिंग के थ्रू मेरा भी हीलिंग होना है। ये विचार आपको शायद अस्वस्थ करेगा, शायद आपको ऐसे लगेगा कि ये क्यों कर रहा हूं मैं, मतलब ये गड़े मुर्दे क्यों मैं निकाल रहा हूं, मुझे इनकी अभी क्या जरूरत है। और शायद आपके मन में ये ख्याल आया कि जितना मैंने इनको नुकसान किया था उसे शायद ये लोगों ने मुझे ज्यादा तकलीफ दी थी, मुझे मेरा ज्यादा नुकसान इन लोगों ने किया था। तो अगर किसी ने किसी की अमेंड्स करनी है तो शायद इन लोगों ने मेरी अमेंड्स करनी पड़ेगी, और अगर उसने भी डैमेज किया और मैंने भी डैमेज किया तो हो गया ना, फिर तो अभी मुझे आगे करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे। BW कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स ये रियल है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो फॉरगिवनेस का है कि अगर मैं खुद को और औरों को माफ नहीं कर सका तो ये प्रोसेस की मैं शुरुआत नहीं कर सकूंगा। मैंने किए हुए गलत की तरफ देखूंगा नहीं, मैं लोगों ने किए हुए गलतियों को ही दोहराते रहूंगा, और मैं अपने आप को करेक्ट करने की जो जरूरत है उससे
बच के बाहर निकलने का प्रयास करते रहूंगा. We will resentfully focus on the wrong he has done to us. This is especially true if he has in fact behaved badly at all. तो लोगों ने बुरा बिहेव किया है या नहीं है, हम उनके अंदर की बुराई ढूंढ निकालेंगे. मुझे याद है कि किसी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उधार दिए थे, और वो बहुत अमीर इंसान था. और जब मैं ठीक हो गया और मैं सोचा यार पेमेंट्स के तौर पर मुझे ये पैसे दे के आने के, अब मैंने लिए थे वो कुछ खास पैसे ज्यादा नहीं थे, और मैंने सोचा इतने बड़े अमीर आदमी के सामने मैं इतना कम पैसा लेके जाऊंगा तो अननेसेसरली काय को गड़े मुर्दे बाहर निकालने के है. ही डजंट रियली नीड इट. वो शायद देख के मुझे भूल भी गया होगा, उसको क्या फर्क पड़ता है. तो मैं बहाने ढूंढ रहा था दो चीजों के. एक, पैसे देने का मैं टालने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा, पैसे देने से भी ज्यादा जो मेरा ह्यूमिलिएशन होगा कि पैसे लेने के बाद में 9 महीने बीत चुके थे और मैं पैसे लौटा नहीं सका था. अभी जाके वो जो उल्टा सुल्टा मेरे को बात करेगा, मेरे पीने का जिक्र करेगा, मेरे गैर जिम्मेदारी का जिक्र करेगा, ये सब चीजों से मैं सिकुड़ जाता था. और मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मुझे ये जरूरी नहीं है. वो भी तो हरामी है, उसने भी तो साले हराम के ही पैसे कमाए हुए, अंडर द टेबल पैसे कमाए हुए, उसको इतने से पैसे से क्या फर्क पड़ता है. ये मेरा सोचने का ढंग था कि मैं फॉल्ट जो है वो दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास करूं ताकि मुझे अमेंड्स करने से बच जाऊंगा. बट बिल कहता है कि इट्स नॉट अबाउट दैट एट ऑल. सो ये जो रेस्टिट्यूशन करना है वो मुझे मुझे मेरे मन के स्वास्थ्य के लिए करना है. इट इज टू बी डन फॉर माई हीलिंग. और सबसे बढ़िया बात वो कहता है कि जब मैं दोषी हूं तो मैं दूसरे को दोषी बोलने का क्या पॉइंट है. मैंने मेरे दोषों के ऊपर फोकस करना है. दूसरा दोषी है या नहीं वो मानता है, वो जानता है कि दुनिया का हर व्यक्ति कोई संत महात्मा तो है नहीं. हर एक को किसी न किसी प्रकार की इमोशनल उलझने रहती है, सिकनेसेस रहते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स रहते हैं. तो लोग हमेशा नॉर्मल रहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन मैं जो हूं, आज मैं ठीक होने के रास्ते पर अगर लग चुका हूं तो मुझे ये हर प्रकार, क्योंकि रिश्तों में अलग अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हम पे बहुत भरोसा कर दिया और हमने उनका भरोसा तोड़ा है. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से ही हमारी कभी कदर नहीं की थी, और जब भी हमने उनके साथ कुछ गलत किया तो वो तो पूरी तरह से हमारे ऊपर बरस पड़े थे. तो ऐसे कई सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के रिश्तों से ही समाज बनता है. मेरा मेरे बीवी के साथ रिश्ता अलग होगा, बीवी के बाप के साथ अलग होगा, और बीवी के भाई के साथ में और ही तीसरा रिश्ता होगा. कहीं पर डर मिक्स होगा, कहीं पर एंगर मिक्स होगा, कहीं पर इंसल्ट होगा, कहीं पर जेलसी होगा. ये अलग अलग भावनाओं से प्रेरित होते हुए मेरे रिश्ते में भी अलग अलग प्रकार के तकलीफें होगी. सो वी बिगिन बाय फॉरगिविंग वन एंड ऑल. सबसे पहले अपने आप को, और फिर वो सब लोगों को जिन्होंने काल्पनिक या सही मामले में मेरे साथ में कुछ गलत किया होगा, उन सबको मैं सबसे पहले माफ करके इस स्टेप की शुरुआत करता हूं. क्योंकि मेरी माफी नहीं है तो मेरे अंदर के रिजर्वेशन जाने वाले नहीं है. मैं ह्यूमिलिटी के साथ में मैं इनके सामने जाकर बैठ ही नहीं सकने वाला हूं. सो फर्स्ट आई नीड टू बिगिन विथ फॉरगिवनेस. ओवर टू यू चंदू. Thank you, Bhushan. When listing the people we have harmed, most of us hit another solid obstacle. We got a pretty severe shock when we realized that we were preparing to make a face-to-face admission of our wretched conduct to those we had hurt. It had been embarrassing enough when in confidence we had admitted these things to God, to ourselves, and to another human being. But the prospect of actually visiting or even writing the people concerned now overwhelmed us, especially when we remembered in what poor favor we stood with most of them. There were cases too where we had damaged others who were still happily unaware of being hurt. Why? We cried, shouldn't bygones be bygones? Why do we have to think of these people at all?
These were some of the ways in which fear conspired with pride to hinder our making a list of all the people we had harmed. Some of us, though, tripped over a very different snack. We clung to the claim that when drinking, we never hurt anybody but ourselves. Our families didn't suffer because we always paid the bills and seldom drank at home. Our businesses associates didn't suffer because we were usually on the job. Our reputations hadn't suffered because we were certain few knew of our drinking. Those who did would sometimes assure us that after all, a lively bender was only a good man's fault. What real harm, therefore, had we done? No more. Surely, then we could easily mend with a few casual apologies. This attitude, of course, is the end result of purposeful forgetting. It is an attitude which can only be changed by a deep and honest search of our motives and action. Though in some cases we cannot make restitution at all, and in some cases action ought to be deferred, we should nevertheless make an accurate and really exhaustive survey of our past life as it has affected other people. In many instances, we shall find that though the harm done others not been great, the emotional harm we have done ourselves has. Very deep, sometimes quite forgotten, damage, damaging emotional conflicts persist below the level of consciousness. At the time of these occurrences, they may actually have given our emotions violent twists, which have since discolored our personalities and altered our lives for the worse. Thank you. तो बिल डब्ल्यू यहाँ पर 8वां कदम लेने में जो भी हिचकिचाहट है, जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, उनके बारे में जिक्र करता है कि सबसे पहले वो कहते हैं कि हम जब तक लोगों ने जो गलत हमारे साथ में किया है वो गलतियों को माफ नहीं करते, तब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत, ये 8वें कदम की शुरुआत हम लोग कर नहीं सकते हैं। फिर दूसरा जो है वो बात करते हैं वो एम्बेरसमेंट का, यानी जब भी हमने चौथा कदम लिखा था वो टाइम पे वो लिखते हुए भी मुझे शर्म लग रहे थे, और वो लिखने के बाद में जब भी मैंने स्पॉन्सर से और ईश्वर के सामने जब भी इन चीजों का जिक्र किया था तो भी मेरे अंदर से ऐसी मतलब शर्म से मैं मरे जा रहा था, कैसे वैसे मैंने मुश्किल से मेरे अंदर से बाहर निकाल दी। और अभी आप बोल रहे हो कि ये मुझे उस व्यक्ति के सामने जाके बोलना होगा, तो वो जो है कि एक्चुअली जिस व्यक्ति को मैंने मेरी वजह से शर्मनाक चीजों का सामना करना पड़ा है या मैंने शर्मनाक चीजें की हुई है, ऐसे व्यक्ति के सामने बैठकर उनसे ये बातें कर सकना इस विषय के ऊपर, इसके लिए बहुत बड़ा धैर्य लगता है। और ये वो जो शर्म है, वो शर्म मुझे ये करने को रोकती है। और मैं सोचता हूँ ये क्यों जरूरी है, ये भाई, यानी ये करने से किसका फायदा होगा? हो सकता है उनको शायद पता भी नहीं होगा, मैंने जो भी उनके साथ में गलत किया है वो शायद उनको पता भी नहीं होगा। मैं सामने जाके बोल के वो गड़े मुर्दे निकाल के उनको सामने जिक्र करने का जरूरत क्या है? तो ये दूसरा एम्बेरसमेंट का मुद्दा बात करते हैं। तीसरा बिल डब्ल्यू कहते हैं जो मुद्दा है वो है डिनायल का। हम में से कुछ लोग सोचते कि अरे मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने ज्यादा से ज्यादा तकलीफ खुद को ही दी, मैंने ना कभी अपने फैमिली को मारा पीटा या कुछ उनके पैसे कम दिए या ऐसा कुछ नहीं किया, या मैंने कभी मेरे वजह से किसी को कुछ तकलीफ हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। और कभी कभी एक आध बार अगर मैंने थोड़ी बहुत ज्यादा पी के नौटंकी की होगी या थोड़ा सा गिरा होगा या मारामारी हुई होगी या गाड़ी वाड़ी ठोकी भी होगी, तो पीने के बाद में लोग करते हैं ना ऐसी चीजें, ये उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कोई भी अच्छा आदमी होगा, वो थोड़ी सी ज्यादा पिलाओगे तो ये तो हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सा कैजुअली अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो काम तमाम हो जाएगा ना, उसमें कौन सा नुकसान भरपाई करने की जरूरत है या बैठ के सामने करने का, मैं सॉरी यार वो दिन में जरा ज्यादा पी लिया और मेरे हाथ से ऐसा हो गया, इतना बोलने से काफी नहीं है क्या? ये और एक तरीका है, वो कहते हैं कि ये अलग अलग ऑब्स्टेकल्स है जो मुझे कदम लेने से रोकते हैं। और बिल डब्ल्यू यहाँ पर चेतावनी देते हैं कि मैं जानता हूं कि हर प्रकार का नुकसान भरपाई शायद हम कर नहीं पाएंगे,
कुछ ऐसी नुकसान भरपाई होगी जो मैं इमीडिएट कर सकता हूँ, कुछ ऐसी होगी जो शायद मुझे थोड़े समय के बाद में करनी चाहिए, और कुछ होगी जो शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे सभी प्रकार की होगी, लेकिन कुछ भी हो, इनकी यादी तो मुझे बनानी होगी। तो अगर मैं कागज पर अगर आप जो नए सदस्य है वो देखना चाहते हो, तो अगर गूगल पे भी आप डालोगे 8 स्टेप अमेंड्स चार्ट, तो उसमें आपको अलग अलग मॉडल्स कई सारे सदस्यों ने बनाए हुए वगैरह ऐसे देखने को मिलेंगे, जहां पर टाइप ऑफ रॉन्ग और वो कभी करना चाहिए, उसकी अमेंड कभी करना चाहिए, अब भी करनी चाहिए, वो फाइनेंशियल अमेंड्स है या इमोशनल है, या उसका नेचर ऑफ अमेंड्स क्या है, वगैरह वगैरह के टेबल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहे तो उनका सहारा भी ले सकते। तो कहते हैं कि कई बार जो हार्म हमने लोगों को पहुंचाया, जो तकलीफ हमने लोगों को पहुंचाई है, उससे शायद ज्यादा गहरी तकलीफ हमने अपने आप को पहुंचाई है। और वो हम अपने आप को शायद माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे मुझे भी मेरे जिंदगी के कुछ किस्से याद है। शायद मैंने ये किस्सा कहा था कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, टेबल टेनिस पार्टनर था, और हम लोग कॉलेज में लिटरली दिन भर हम लोग साथ में हुआ करते थे। अभी खेलने के लिए साथ में होते थे, तो कभी कभी पढ़ने के लिए भी एक साथ में बैठते थे। एक दिन वो पढ़ने के लिए मेरे पास आया था। वो एक बम्बई के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर का बेटा था। बड़ा, मतलब पेडर रोड पे पेंट हाउस वगैरह वगैरह टाइप का डुप्ले, मतलब बंगलो ही था वो, एक्चुअली बिल्डिंग के ऊपर बनाया हुआ बंगलो, ऐसा उसका घर था। और ये मेरे घर में एक बार पढ़ने के लिए आया था, और उसने वो वॉलेट निकाल के रखा था साइड में। और जब भी हमारा पूरा हो गया और घाई घाई में वो जब भी निकल गया, तो उसका वॉलेट पीछे रह गया। अब मैंने वो वॉलेट खोला तो कुछ 600-700 रुपए थे दोस्तों। उन दिनों मेरा महीने का पॉकेट मनी 60 रुपए हुआ करता था, और ये 600-700 रुपए देख के मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने वो रख लिया, वो वॉलेट और वो पैसा सब रख लिया। अब उसने वो खुद निकाल के रखा था, तो उसको तो याद था। तो अगले दिन सुबह जब अरे मेरा वॉलेट रह गया तेरे घर पे, बोला नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुझे वो 600-700 रुपए ने मेरी नीयत बिगाड़ दी थी। और उसने मेरी चेहरे की तरफ एक दफा बोला, और बोला ठीक है कोई बात नहीं, और उसने वो बात टाल दी। लेकिन उसके बाद दोबारा उसने कभी भी ना मेरे साथ खेलने को आया या पढ़ने को आया। वो 600-700 रुपए के चक्कर में मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त गवा दिया। अब मैं जानता हूं कि वो इतने अमीर घर से था कि वो 600-700 रुपए से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने इनफैक्ट, मेरा टीटी का गेम अच्छा था, हम लोग तो मेरे बर्थडे को नई बटरफ्लाई की रैकेट मुझे गिफ्ट की थी, जो उन दिनों भी ऐसे ही, मतलब 1000-1500 रुपए की रैकेट हुआ करती थी। वो मुझे उसने गिफ्ट करती थी। उसको 600-700 रुपए से कोई मायना नहीं था, लेकिन उसने अपने, उसके मन में से मैं गिर गया। वो 600-700 रुपए मैंने उसके जो चोरी किए हैं, उसके वजह से मैं उसके मन में गिर गया, और उसने उसके बाद में मेरे साथ संबंध नहीं रखा। दोस्तों, उसके बाद में मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन आज भी मेरे मन से वो 600-700 रुपए की चोरी गई नहीं है। मैंने कई बार उसको ढूंढने का प्रयास किया, बाद में तो फेसबुक सब पे ढूंढने का प्रयास किया। उसको वो अमेंड्स करना था, उसको सॉरी बोलना था, उसको मेरी परिस्थिति, मेरा मेरा शराब के प्रति लाचारी और मुझे पीने की वो जरूरत, ये मुझे उसको बताना था। लेकिन मुझे मौका नहीं मिला दोस्तों। वो जितनी शायद उसने मेरे को सजा दी मेरे से दोस्ती तोड़कर, उससे कई गुना ज्यादा मैंने अपने आप को सजा दी। क्योंकि वो जो अपने आप को चोर बनते हुए देखने का, जो अपने आप की नजर से गिरने की जो जो हरकत है, उसमें से छुटकारा नहीं मिलता है दोस्तों। कितना भी तुम बाद में कमा लोगे, कितना भी बाद में समाज के लिए तुम करोगे या पैसे बांटोगे, वो जो तुमने जो अ, क्या कहते हैं, विश्वासघात किया हुआ है, वो विश्वासघात तुम अपने आप को भूल नहीं सकते हो। ऐसे ही कई सारे गर्लफ्रेंड्स या और रिश्तों में मैंने स्वार्थ से
मैंने कुछ प्रॉमिसेस किए, कुछ सपने दिखाए और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ शारीरिक संबंधों को बढ़ाना चाहता था। और बाद में कुछ एक आध लड़की को मैंने बहुत हर्ट होते देखा, मतलब लिटरली उसको ऐसे जिंदगी से उठते हुए मैंने देखा। और वो जो चीज है उसके लिए मैं आज भी अपने आप को माफ नहीं, आगे जाके उसका क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, उसकी शादी हुई नहीं हुई, किसके साथ हुई, कहाँ है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब भी उस व्यक्ति का चेहरा, नाम अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ और उस व्यक्ति की जो याद आती है, ये ना मैं कभी अमेंड कर सका, ना मैं उसको ढूंढ सका, ना मैं, मुझे ये करनी भी नहीं चाहिए। आगे जाके इस चेतावनी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ऐसी जो चीजें हैं जहां पर शायद लोगों को जो हार्म किया उससे कई ज्यादा गंभीर हार्म मैंने अपने आप को किया, अपनी ही नजर में मैंने अपने आप को गिरते हुए पाया। वो जो है उसके बारे में बात बीडब्ल्यू यहाँ पर करते हैं। सो अंतिम, emotional confidence policy below the level of consciousness. At the same time, these occurrences, they may actually have given our emotions violent twists. यानी हमको लगता है कि वो बीती बातें पीछे रह गई, लेकिन उन्होंने एक वायलेंट ट्विस्ट हमारी पर्सनालिटी को, कि मेरी मेरी नजर में मैं पूषण को जो निगाहों से देख रहा था, वो अपनी निगाहों से मैं गिर गया। मतलब मेरे इमोशंस को एक झटका बैठ गया, एक शॉक बैठ गया, या अपने आप को मैंने जख्म किया। उसके बारे में बीडब्ल्यू कहते हैं। ओवर टू यू चंदू। Thank you, Bhushan. While the purpose of making restitution to others is paramount, it is equally necessary that we extricate from an examination of our personal relations every bit of information about ourselves and our fundamental difficulties that we can. Since defective relations with other human beings have nearly always been the immediate cause of our woes, including our alcoholism, no field of investigation could yield more satisfying and valuable rewards than this one. Calm, thoughtful reflection upon personal relations can deepen our insight. We can go far beyond those things which were superficially wrong with us, to see those flaws which were basic, flaws which sometimes were responsible for the whole pattern of our lives. Thoroughness, we have found, will pay and pay handsomely. We might next ask ourselves what we mean when we say that we have harmed other people. What kinds of harm do people do one another anyway? To define word harm in a practical way, we might call it the result of instincts in collision, which cause physical, mental, emotional, or spiritual damage to people. If our tempers are consistently bad, we arouse anger in others. If we lie or cheat, we deprive others not only of their worldly goods, but of their emotional security and peace of mind. We really issue them an invitation to become contemptuous and vengeful. If our conduct is selfish, we may excite jealousy, misery, and strong desire to retaliate in kind. Such gross misbehavior is not by means a full catalogue of harms we do. Let us think of some of the subtler ones, which can sometimes be quite as damaging. Suppose that in our family lives we happen to be miserly, irresponsible, callous, or cold. Suppose that we are irritable, critical, impatient, or humorless. Suppose we lavish attention upon one member of the family and neglect the others. What happens when we try to dominate the whole family either by a rule of iron or by constant outpouring of minute direction for just how their lives should be lived from hour to hour? What happens when we wallow in depression, self-pity oozing from every pore and inflict that upon those about us? Such a roster of harms done others, the kind that make daily living with us
Practicing alcohol is difficult and often unbearable, could be extended almost indefinitely. When we take such personality traits, add these into shop, office, and the society of our fellows, they can damage almost as extensive as that we have caused at home. Thank you. तो इन पैराग्राफ्स में बिल डब्ल्यू बेसिकली, मुझे याद है कि मैं एक मेरे स्पॉन्सी के साथ में काम करता था और वो हमेशा बोलता था, यार मैंने किसी को कुछ नहीं दुखाया, मैंने किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया, मैं सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हेल्दी है, मेरा बीवी बच्चा बहुत खुश है, तुम मेरे बीवी से बात करके देखो, तुम मेरे बच्चे से बात करके देखो। और हमेशा वो ही, उसको ऐसे ही लगता था कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मेरे वजह से किसी को तकलीफ हुआ ही नहीं है, तो मुझे ये करने की जरूरत है क्या। तो बिल डब्ल्यू यहाँ पर बताता है कि किन किन तरीकों से हम लोगों के साथ में संबंध बिगाड़ सकते हैं, किन किन प्रकारों से हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बिल ये भी कहते हैं कि अगर आपने उसकी जो सही जो कारण है, वो कारण को पहचाना नहीं है, तो वही चीज जो आपके कैरेक्टर में जो डिफेक्ट निर्माण हुआ है, वो आपके जिंदगी में बार 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 आपको दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर, मैं शायद 9वीं कक्षा में था और वो टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने ब्लू फिल्म देखा था, और वो ब्लू फिल्म में जो कुछ भी चीजें वो जो कर रहे थे, वो देखकर मुझे वो टाइम पे बड़ा स्टिमुलेशन हुआ कि अरे ये क्या मजा आया है, एक्साइटमेंट हो गया, और मैं सोचता था कि ये मुझे करना है। अब मैं जानता हूं कि ये करना आसान तो छोड़ो, लेकिन असंभव है। ऐसी कुछ भी चीजें मैंने वहां पर देखी थी, लेकिन वो फैंटेसी मेरे मन में लेकर, वो फैंटेसी को पूरा करने के चक्कर में मैंने क्या क्या प्रयास किए। अब प्रॉब्लम यह है कि वो फैंटेसी फुलफिल होने वाली नहीं है और मेरे को वो शांतता कभी मिलने वाली है नहीं, लेकिन वो एक न बुझने वाली नई प्यास मैंने निर्माण की हुई है, और ये प्यास की वजह से जो भी मेरे करीबी रिश्ते आने वाले हैं, मेरे साथ में जो करीब आने वाले, उन सबको मेरे वजह से सदमा होने वाला है, मेरे वजह से कुछ तकलीफ होने वाली है, एम्बेरसमेंट होने वाली है, ह्यूमिलिएशन होने वाला है। ये सब चीजें हैं, ये मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो मेरे अंदर का जो अनरिजॉल्व इशू है, वो अनरिजॉल्व इशू बार बार उसका चेहरा दिखाते रहता है। तो जैसे मेरा एक दोस्त हमेशा शेयर करता था कि उसके माँ बाप में संबंध ठीक नहीं थे, मतलब उसके जो पिता थे वो उसकी माँ के ऊपर उनका बड़ा शक हुआ करता था। अभी वो जायज था या नहीं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो मेरा दोस्त था जो शराबी था, वो छोटे से बड़ा बना, वो शक और उसके वजह से होने वाले झगड़े और वो सब वही चीजें देखते हुआ, और उसके वजह से उसका और उसके बीवी का भी रिलेशनशिप कभी भी नॉर्मल नहीं हुआ। उसके बीवी ने कभी जिंदगी में कोई उसको कारण नहीं दिया था कि वो शक करे। वो पूरी तरह से उसको डिवोटेड थी, एक अच्छी फैमिली उसने की थी, 2 बच्चे उसको दिए थे, सब कुछ उसको जो चाहिए था एक अच्छा कुटुंब बनाने के लिए सब कुछ दिया था। लेकिन ये जो बचपन से उसके ऊपर जो संस्कार हुए थे, या जो ये शक, और वो औरत ऐसा कर सकती है और तुमको दगा दे सकती है, ये जो कुछ भाव वो लेके जो चल रहा था, तो उसके हर रिश्ते में वो कभी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर पाया। तो कभी कभी कुछ स्कार्स हमारे पर्सनालिटी के अंदर ऐसे रहते हैं, जो अगर वो हम समय पर उसको समझते नहीं है, उसके ऊपर इलाज नहीं करते, उसका हीलिंग नहीं होता है, तो जिंदगी भर वो एक ही हैंडीकैप हमें बार बार अलग अलग रिश्तों में अलग अलग रूपों में दिखाई देगा। उसके बारे में बिल डब्ल्यू यहाँ पर बात करते हैं। So, Bill W. यहाँ पर कहते हैं, since defective relations with other human beings have nearly always been the immediate cause of our woes, including our alcoholism,
No field of investigation could yield more satisfying and valuable rewards than this one. BW कहते हैं कि कामली बैठ के, शांतता से बैठ के आपके हर एक रिश्ते की अहमियत को देखो। ये जो इन्वेस्टिगेशन है कि ये मैंने इस व्यक्ति के साथ में ऐसा क्यों किया, क्या हुआ था, मेरे अंदर कौन सा भाव ऐसा हुआ था कि जिसके वजह से मुझे इनसिक्योर लगा, या क्या था, वो हर भाव जो है उसको समझो, शांतता पूर्वक उसको ये समझो, और आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर बार बार नजर आने वाली जो समस्या है वो आपको खुद को दिखाई देने लगेगी कि अगर जो प्रॉब्लम मेरा चंदू के साथ में है वही प्रॉब्लम मेरा शायद लकी के साथ होगा, और वही प्रॉब्लम शायद मेरा नरेंद्र के साथ होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम नरेंद्र या लकी या चंदू में नहीं है, वो प्रॉब्लम मेरे अंदर है, और वो प्रॉब्लम मैं हर मेरे रिश्ते में दोहराऊंगा। तो उसके बारे में BW कहता है। और फिर BW कहता है कि हम लोग हार्म यानी कि दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, नुकसान करना, ये वो किस प्रकार का नुकसान हम लोग करते हैं। तो कई प्रकार के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए, ये एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ताकि आप अपने अपने एग्जाम्पल्स बना सको। आपकी जो 8वें कदम की जो यादी बनानी है आपको, वो यादी बनाने समय आपको ये 4 जो भाग उसने बनाए, what have which are instincts in collision which cause physical, mental, emotional और spiritual damage। तो आपकी जो मूलभूत प्रवृत्ति है वो जब भी दूसरे व्यक्ति की मूलभूत प्रवृत्ति से टकरा जाती है, जैसे मेरी हवस है तो चंदू की भी हवस है, और अगर कोई एक लड़की है जो चंदू को भी पसंद है और मेरे को भी पसंद है, तो हम दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली बैर हो जाता है, क्योंकि इंस्टिंक्ट्स इन कोलाइजन। जैसे मुझे अपना बड़प्पन दिखाना है तो चंदू को भी अपना बड़प्पन दिखाना है, और हम दोनों जब भी एक ही ग्रुप में अपना अपना बड़प्पन दिखाना चालू कर देते हैं तो इंस्टिंक्ट्स कोलाइड हो जाती है और रिश्तों में दरार आ जाती है। तो बिल कहता है कि आप आपकी यादी बनाइए कि आपकी इंस्टिंक्ट ऐसी कोलाइड होने की वजह से शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक तरीकों से आपने किस किस प्रकार से लोगों के साथ में पंगे लिए हुए हैं। शारीरिक यानी एक्चुअली झगड़े या मारामारी या ढकेलना वगैरह वगैरह। फिर मानसिक यानी खुन्नस और बदला लूंगा, प्लान करूंगा, इसके खिलाफ ऐसा करूंगा, पॉलिटिक्स करूंगा, उस टाइप की। फिर इमोशनल यानी मैं उसको जीतना चाहता था, मैं कैसे भी करके बाय बैग बोरो स्टील मैं इसको हासिल करके रहूंगा। और अध्यात्म यानी मुझे जहां पर सेफ, सिक्योर और लगेगा, ये जिसको जो भी धोखा निर्माण करे उसके प्रति जो मैंने किया है। तो इस प्रकार की एक यादी बनाते हुए मेरी इंस्टिंक्ट्स की वजह से कौन से लोगों के साथ में मेरा पंगा हुआ उसका एक यादी बनाना। तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि मेरे गुस्से की वजह से लोगों में कैसे गुस्सा आया, या मेरे झूठ की वजह से या लोगों को फंसाने की वजह से लोगों का इमोशनल सिक्योरिटी या उनकी मन की शांतता मैंने कैसे खोई हुई है, या उनको मेरे प्रति या तो डर या गुस्सा या मेरे मन के प्रति मतलब मन का स्वास्थ्य उनका जो है वो मैंने कैसे बिगाड़ दिया है। मेरे सेक्स इंस्टिंक्ट की वजह से मैंने सेल्फिश बनते हुए लोगों के अंदर कैसे जेलसी या मेरे खिलाफ खड़े होने की ऐसी भावना मैंने कैसे की है। ऐसे कई सारे उदाहरण BW बताता है कि जो मैं औरों के साथ में मेरे रिश्ते किस वजह से खराब होते हैं, या तो मैं लोगों को कैसे तकलीफ में डालता हूं या मैं कैसे तकलीफ में जाता हूं। कि बोलते बड़े बड़े हार्म तो बाजू में छोड़ दो, तो कई बार फैमिली में छोटे छोटे जो हार्म है उनके बारे में बात करते हैं कि जैसे मेरी कंजूसी की वजह से या मेरे गैर जिम्मेदार बिहेवियर की वजह से
या मेरे भावनिक रूप से लोगों के साथ जुड़ने नहीं होने की वजह से मेरे घर में मैंने क्या क्या अत्याचार या अन्याय किए हैं। सपोज मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, मैं हमेशा लोगों की गलतियां निकालते रहता हूँ, या मेरे में पेशेंस नहीं है, मैं सहनशीलता नहीं है मेरे अंदर, या मैं हमेशा हर चीज को सीरियसली लेता हूँ और लोगों को स्पेस नहीं देता हूँ, या एक घर के व्यक्ति के ऊपर मैं ज्यादा प्यार बरसाता हूँ और दूसरे व्यक्ति को हमेशा नीचा दिखाता हूँ, इस प्रकार का जो बिहेवियर है वो निगेटिविटी निर्माण करता है, रिश्तों में दरार पैदा करता है। अगर मैं पूरे फैमिली को डोमिनेट करता हूँ या उनको माइक्रो मैनेज करता हूँ, मैनिपुलेट करता हूँ, तो हर प्रकार से जब भी मैं उनके ऊपर हावी होने का कोशिश करता हूँ, या मैं अरे मेरा कोई सुनता ही नहीं है, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ या सेल्फ पिटी में चला जाता हूँ, और तुम लोगों की वजह से मेरा ऐसा हुआ, तुम लोगों की वजह से मेरा ठीक नहीं चल रहा है, इस प्रकार के दोष में अगर लोगों के ऊपर डालता हूँ, तो ये हर जो चीज है, ये हर जो मेरा इमोशनल आउटबर्स्ट है, हर जो एक मेरा लोगों के साथ में कनेक्ट होने का जो एक तरीका है, ये उसके वजह से लोगों के बीच में मेरे रिश्ते खराब होते हैं, मैं उनको हार्म पहुंचाता हूँ। सो यहाँ पर है एक लास्ट 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से चंदू आप ले लीजिए। Okay, okay, Pushin. Thank you. Having carefully surveyed this whole area of human relations and having decided exactly what personality traits in us injured and disturbed others, we can now commence to ransack memory for the people to whom we have given offense. To put a finger on the nearby and most deeply damaged ones shouldn't be hard to do. Then, as year by year we walk back through our lives as far as memory will reach, we shall be bound to construct a long list of people who have, to some extent or other, been affected. We should, of course, ponder and weigh each instance carefully. We shall want to hold ourselves to the course of admitting the things we have done. Meanwhile, forgiving the wrongs done us, real or fancied. We should avoid extreme judgments, both of ourselves and of others involved. We must not exaggerate our defects or theirs. A quite objective view will be our steadfast aim. Whenever our pencil falters, we can fortify and cheer ourselves by remembering that a experience is in this step as meant to others. It is the beginning of the end of isolation from our fellows and from God. Thank you. तो ये अंतिम पैराग्राफ में बिल डब्ल्यू कहते हैं कि ये जो यादी बनानी है, ये सखोल और जितना हो सके उतने डिटेल में बनानी है। बोलते हैं जहां बड़ा बड़ा हार्म हुआ है वो तो इमीडिएटली सामने नजर के सामने आएगा और झट से कागज पे उतर भी जाएगा, लेकिन हम अगर सिर्फ बड़े बड़े हार्म हैं उन्हीं को कागज पे उतार के उन्हीं का अमेंड्स करने का ऐसा सोच के चलेंगे तो हीलिंग प्रॉपर नहीं होगा। इसके लिए आज से शुरू करते हुए पीछे 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 हर साल, फिर उसके पिछले वाला साल, फिर उसके पिछले वाला साल, ऐसा पीछे 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 जहां तक मेरी मेमोरी मुझे याद देती है। यानी अगर मेरी पहली मेमोरी 6 साल की है और वो 6 साल का मैं था जब भी मैंने शायद मेरे दोस्त का जेलसी की वजह से, मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था, उसके माँ बाप ने उसको वो स्कूटर लाई थी, वो जो पैर, एक पैर उसके ऊपर रखे दूसरा पैर जमीन पे चलाते हुए भगाते हैं, वो उसके लिए स्कूटर लाई थी और मुझे स्कूटर चाहिए थी। और मुझे मेरे माँ बाप को मैंने मांगा था या नहीं वो भी याद नहीं है, लेकिन उसको स्कूटर मिली है इस बात की मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। और मैं उसको बोला मेरे को चलाने दे, मेरे को चलाने दे, तो वो मेरे से 1 राउंड मारने की एक पेंसिल लेता था और मैंने कुछ 4-5 पेंसिल उसको दी और जब मेरी पेंसिल खत्म हो गई तो मैंने उसकी स्कूटर को इस प्रकार से डैमेज किया
कि ना मैं चला सका ना वो चला सका। अभी आई मस्ट हैव बीन 6 और 7 ईयर्स ओल्ड, मुझे याद नहीं है कि बट बहुत छोटा था, मतलब मैं शायद पहली कक्षा में भी अभी तक नहीं था। तभी से मेरा ये जो खुनशी स्वरूप है कि अगर मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं तेरे को भी नहीं मिलने दूंगा, ये जो हाँ मैंने पूछा अभी, वो ना लड़का मुझे याद है, ना वो लड़की के माँ बाप याद है, ना मैं उसका एमएस कभी जाके कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज को मैं अभी तक भुला नहीं पाया हूँ, वो चीज को मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूँ। मेरे अंदर वो कमीनापन है, मेरे अंदर वो जेलसी है, ये मैं नहीं भूल पाया। और ये अपनी पहचान खुद को करा के लेना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। सो BW कहते हैं कि वी शुड कोर्स पॉन्डर एंड वे ईच इंस्टेंस केयरफुली। ये जो हरकत हुई है कि ये जो लंबी लिस्ट जो बनेगी, वो किसी ना किसी प्रकार से जिनको मेरी वजह से तकलीफ हुई है, वो जो किस्सा है, हर जो व्यक्ति है और हर जो प्रकार है, जिस प्रकार से मैंने इनको हर्ट किया है, इनको हर एक को बारीकाई से मुझे देखना पड़ेगा। और ये अगर जब मैं करते रहूंगा तो धीरे 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 मैंने क्या किया है ये मुझे समझ में आएगा। मैं लोगों को भी फॉरगिव करने लगूंगा कि जो भी चीजें मैंने उन्होंने मेरे साथ में गलत किया उसके लिए मैं उनको माफ करता हूँ। और मैं भी धीरे धीरे अपने आप को माफ करने लगूंगा। मैंने अपने आप को जितना कमीना अपने मन में पकड़ा था, शायद मैं उतना कमीना नहीं हूँ, शायद ये चीजें सभी लोग करते हैं। वो उम्र के बच्चों में सभी में वो ईर्ष्या होती है, सभी में वो गुस्सा होता है, सभी को वो व्यक्त होना नहीं आता है। इस प्रकार का जो खुद के प्रति जो जागृति है या पहचान, खुद को जान पाना, ये जो कहते हैं वो हमको दिखाई देता है। BW यहाँ पर एक चेतावनी देता है, हम किसी भी दूसरे का या अपने डिफेक्ट को एग्जैजरेट यानी बढ़ा चढ़ा के दिखाना या देखना, ये इसका उद्देश्य नहीं है सेफ का। कई सारे लोग वो 8वें कदम में ऐसे दिखाते कि जैसे मैं कितना बड़ा हरामी था, ये दिखाने का प्रयास होता है उनका। नहीं दोस्तों, ये कोई बड़प्पन या मैं कितना हरामी था ये दिखा के किसको दिखाना है, किसी को नहीं दिखना है। ये सेल्फ नॉलेज है। मेरे स्पॉन्सर को इंप्रेस करने के लिए ये स्टेप नहीं लेनी है, ये सेल्फ नॉलेज के लिए है कि मेरे अंदर ये सब चीजें थी, रही है और आज भी होगी। इस बात का एक क्वाइट एंड ऑब्जेक्टिव व्यू इज आवर स्टेडफास्ट एम, ऐसा वो कहते हैं। एक शांतता पूर्वक और एक साक्षी भाव में लिए हुई नजर, ये हमारा इसके पीछे का उद्देश्य है। ये BW इसकी चेतावनी देती है और बोलते हैं कि कभी कभी लिखते लिखते आपकी पेंसिल अटकेगी और आपकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन याद रखिए ये कदम लेने के वजह से सैकड़ों ने, हजारों ने, लाखों ए मेंबर्स का बहुत सारा फायदा हुआ है। ये कदम है जो शुरुआत है कि हमारे अकेलेपन का अंत है। और हम अभी ईश्वर के साथ में और औरों के साथ में एक मीनिंगफुल और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की हमारी शुरुआत है। और जो हम लोग बोलते हैं ना कि मैं हमेशा से लोनर रहा हूं, मैं हमेशा से ही कम बातचीत करने वाला रहा हूं, तो ये जो लोनर और जो कम बातचीत वाला जो व्यक्ति रहता है, उनके भीतर ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस और ये बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप सही ढंग से ये 8वें कदम की यादी बनाते हो तो ये शुरुआत है कि आपका आइसोलेशन, आपका ये जो अकेलेपन का दौर जो है वो खत्म होके अभी आपकी पर्सनालिटी ये सबके साथ घुल मिल कर रहने की, समाज में दोबारा प्रतिष्ठा पाने की, आपका औरों के साथ में और ईश्वर के साथ में प्यार का रिश्ता बनाने का ये पहला कदम होगा। इस प्रॉमिस के साथ में BW इस स्टेप 8 के निबंध को यहीं पर खत्म करते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे भी 10:26 हो चुके हैं, तो हम अपने आप को भी यहीं पर विराम देते हैं। तो दोस्तों, मुझे बोलने का मौका दिया और बड़ी शांतता के साथ में आप सब लोगों ने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी 4 मिनट बचे हैं, अगर किसी के मन में कुछ शेयर करने जैसा भाव है या किसी को कोई सवाल है तो हम जरूर ले सकते हैं। ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। दोस्तों प्लीज अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं और कोई भी सवाल या कोई भी छोटा सा शेयरिंग करना चाह रहे हैं आप
हेलो, कर सकते हैं हमारे एक पास। सवाल है। हेलो, पूछिए।